Yeah, hello, good evening. And today we will be covering the remaining concepts, which is not much. So today's session is also going to be 1 hour. So what we will be creating today is we will be creating a blog application, and we will implement that access control thing that I said, so that you can, you know, give roles like admins and users to user privileges to the people or the smart contracts, the externally owned addresses, and you can handle that in the front end. So let's get started. Is my screen visible? So hello, is my screen visible? Hope so. Okay, cool, I presume. Uh, cool. So for that, let's initially start by declaring the license and solidarity, and we will be using and this thing access control from OpenZeppelin. And I guess there are many contracts in OpenZeppelin. This is a 3x. There is also 4x and all. You have to explore it yourself. So these are basically smart contracts that are pre-written for your specific needs, like ERC20, ERC 721, 771, 1155, all of these things. But what we will do is we will focus on this, and let's try to create that. First, we will have, I guess, this one, but it is 6.0. And I have this already in this. Can you see this being imported? Let me see. Kiran, can you just tell if the screen is visible or not? Or Tyasha, Garima, anyone? Yeah, it's visible. All good. Okay. So we will be using this contract import direct. But for the other thing, you have, I guess, you have to install if you are using Node.js or hard hat or something like that. So you have to directly import that or install that. There is a package, it might be an npm package, but I don't know. But let's click on this, and here is the smart contract that we will be using. Here everything will be set to, so the constructor contract should be set to, not in the constructor we have to set the message.sender or the person who will be deploying this contract to this default admin role, and that will be the super admin, right? And super admin will have the access to almost everything. So these initially he will be able to set any roles, or will have access to grant or revoke roles based upon the logic that we provide. So let's start. Cool. Let's read a contract. I will make it is access control. This one. And no errors. And now let's create the constructor. In the constructor, you have to define a setup role. There is known as setup role bytes 32, and here you have to give the default admin role. The default admin role is actually not a role. Cool. It is a bytes 32 constant. Default and is 0x0. Here you have to give the address, right? Automatically it will be set as the address that we will be providing. So hopefully that's what it seems. It's written here. I might not have read it properly, but you can read this. That's what I think. And default admin role, and instead of this account, what I will write is I will write message.sender. जो जो deploy किया उसी पे जाएगा, खत्म. Setup role, after setup role we have to set up this default admin role will get this message.sender. Now what we will do is we will create a role which is the admin role, and admin role will have access to almost everything that we want, right? Set. Now that's just the simple stuff that we create in the web2 things. So role, there will be set role admin. So here there will be a role. So the name of the role, how do you define the name of the role? So here what we do is we directly do not write here, okay, no, let's write ADMIN. No, this won't work. Okay.
what we have to do is we need to create it in forms of bytes 32. Now, do we do that? Bytes 32, we need to hash it like KSAC 256 thing that I showed you while comparing two strings, right? Public constant, I will make it constant, and it's a convention. So now what we do is we write admin role. Okay, admin role is KSAC 256, and here we write this string that we provided, which is the ADMIN. Cool. Yes. Now what we do is bytes, bytes 32. I will create a similar thing known as user. Role user role. Now इधर डाल देते हैं, एडमिन डाल देते हैं इसको. Cool. इसको इधर here we will write the default admin role. Yes, this is the convention, and now तो इससे क्या हो जाएगा? The first person who will be calling this contract will get the access to everything, and he will have it as admin. Okay, हम user इसको बाद में set कर देंगे. Cool. Now let's check. There is a function known as in is admin. अगर इसको deploy मारते हैं, let's see the already existing functions that it has. Public functions. Cool. Deploy मारते हैं, देखते हैं. We currently has role. Okay, I haven't set anything. Get role admin. It's a call, and then support interface. I have no idea. Then user role तो हमने set किया है, which is this one. And admin role ये this one. And default admin role पे फिलहाल कुछ भी set नहीं हुआ है, वो तो खाली है. Let's do it. अभी try मारते हैं, चलो एक कुछ set करने का. भी हम करते, let's create and the is admin thing. What we do is we will create a is admin function that will check if the person has the specific role or not. Function is admin address account public, make it view, कुछ chat पे तो नहीं आया, हाँ, public view, and it will return, I guess, a boolean. सिस्टम मिठाई में मस्त. रिटर्न हैज रोल यूज करेंगे. यहाँ पे रोल कौन सा अपने को चाहिए? वी नीड यहाँ पे डिफॉल्ट एडमिन रोल है कि नहीं? डिफॉल्ट आ गया ये, हाँ, डिफॉल्ट एडमिन रोल विल सी एंड अकाउंट है. ठीक है, हम इसको यहाँ पे सेट मार देते रिटर्न्स. कूल. ये इस एडमिन मार दिया. ये है अपना सुपर यूजर के लिए. कूल. और अब हम मारते हैं यूजर रोल का फंक्शन is user account public virtual and view make home return has role. अभी अपने को देती यूजर रोल, and what we write here is यूजर रोल, and अपने को यहाँ पे दूसरा क्या है? अकाउंट. कूल. हाँ, डाल दिए. ठीक है. एंड इज यूजर फंक्शन एड यूजर, एक ऐड मारती हैं. we check if it is admin or not. Count public virtual only admin. इसको ऐसा मारते, ओनली एडमिन का हम बनाते हैं अभी. रुको,
इज एडमिन एंड ओनली एडमिन का एक मॉडिफायर बनाते हैं जो कि इज एडमिन को कॉल करेगा. ओके. एडमिन ऐड यूजर, इसको बात पे करते हैं. पहले मॉडिफायर बना देता हूँ मैं. कॉपी मार दो इसको. क्लियर. ऐड इसको कॉपी मार. only user only admin अभी ऐड मार देंगे. what we will do is like add role, एक और grant role function था. here is the grant role and यहाँ पे हम डाल देंगे user role जो है. user role और account जो कि डालेंगे. cool. इसको add user मार दिया. now I guess add admin था. function add admin. account same public virtual. इसको ऐड यूजर में मैंने यूज एडमिन भी तो, वरना कोई खाली यूजर थोड़ी ना डालेगा अपने वहाँ. कोई भी रोल थोड़ी ना ग्रांट करेगा. ओनली एडमिन. ये भी एडमिन ही ऐड कर सकते हैं. ग्रांट रोल, एडमिन रोल एंड हियर अकाउंट सेट. ऐड एडमिन कर लिया. आई गेस दैट्स इट. अभी हम चेक करते हैं. होपफुली सब चल जाए. यूजर एडमिन डिप्लॉय. अभी what we have to do is check if we have this role or not. अपने को ये डाल दिया is admin. please आजा. तो एडमिन है. ठीक है. तो अगर ये एडमिन है इट मींस अगर इस एडमिन पे क्लिक मारा एंड इट इज कमिंग ट्रू, मतलब मैं कोई भी फंक्शन ये सब मार सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ. बट what I want to do is check here. I will take this contract and I will check if this guy is admin or not. false. is not admin. मतलब ये सारे फंक्शन इज यूजर इज एडमिन. और जब भी मैं ये वाला मॉडिफायर लगा दूंगा, मतलब only admin वाला, so it means that function won't be accessible by this address. ठीक है. this EOI. so इसका मतलब जब भी हम कुछ क्या बोलते हैं गेट डेटा या फिर पोस्ट डेटा डाल रहे हैं, हम ये वाला मॉडिफायर डायरेक्ट डाल देंगे एंड that function will be blocked for that particular user. ठीक है. system set. now let's go to the first contract and try giving this person a little bit of more authority. अभी ना यूजर ऐड करता हूँ पहले मैं. let's add user. did I create an add user is okay. अभी मैंने इसको यूजर ऐड किया. this guy, and I hope that he will be, yes, he was successfully able to call this function. And let's now check if this person has the authority for the user thingy. Okay, has role पे क्या है बताओ. only admin is user. यूजर है, बन गया यूजर. एडमिन है, नहीं है, फॉल्स अभी भी. इसको एडमिन का एक्सेस भी दे देते हैं. एड एडमिन. नाउ इज इट एडमिन. अभी भी फॉल्स आ रहा है. मैंने तो सिस्टम गलत कर दिया होगा. इस एडमिन डिफॉल्ट एडमिन नोन की जगह मेरे को डालना चाहिए एडमिन रोल. हाँ, यही गलती हो रही थी. वो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट देख के समझ गया था कि ये गलती थी यहाँ पे. ओके, होपफुली इट विल वर्क. द एड एडमिन डिलीट मारता है फिर से. let's go to this one, second one, and copy this and try to grant or try to check again if this person has this role or not. It's admin. It's not admin. Let's try to give this person an access of admin. Okay. Add admin. Add मार दो. Now check if this person is admin or not. अभी false आ रहा है. कुछ तो दिक्कत हो रही है. Is admin.
restricted to admins. Okay, is admin false? Okay, admin role account has role. Public view. I guess there's something wrong. The add admin मार दिया मैंने. Okay, is admin still false? Okay, I'll check it. चलो user तो कम से कम सही जा रहा है. ADMIN admin role. कोई ना. I'll try to give the. This might be some logical error only. Is user. Can anyone? Okay. Is admin. Can anyone point out the logical error that I have? If not, we proceed and I will just update you. The user is working fine. Okay. User wala thing is working fine. The admin is not. Shouldn't we use the grant role function? Grant role ही तो किया है. Add admin पे grant role किया तो है. Is it only admin? देखो हाँ only admin अभी ये call हो रहा है. It is calling. It is like a setting, but I guess what I am decoded output use false. इसी भी चल रहा. हाँ it's a logical error, but we know that the user thing is working fine. ठीक है. तो user thing काम कर रहा है तो हम इसी से काम चला लेंगे currently, because our main focus is to create the blog application. ठीक है. ये इसको logical error fix करके दे दूंगा. Currently now अभी इसके लिए let's create a first struct. Okay. I struct uint id string image. एक इमेज आएगा और क्या रहेगा? string text. अभी क्या करते हैं, इसका एक अरे ले लेते हैं. लास्ट टाइम जैसे कि मैंने गंदी तरीके से किया था, वी विल नाउ नॉट डू दैट. वी विल मेक इट इन अ गुड वे. That voting thingy, I did a very nasty code, but now I'll use the array thing so that the return will be pretty easy. Now let's add in data. Uint string memory image URL and string memory text. थोड़ा गैस ऑप्टिमाइजेशन करा देंगे इसमें. It's only the user will be able to add data. And my struct new data. Let's add all of these three datas, ID and image URL and text. Good. सेट हो गया. अभी पुश कर देते हैं अरे पे. और पुश न्यू डेटा. ऑल गुड. अब यूजर ही ऐड कर पाएगा, यूजर ही गेट कर पाएगा, और फिर काउंट भी यूजर गेट कर पाएगा. बस सारे तो यूजर ही कर पाएंगे. एडमिन के लिए एडिट कोई भी एक ऐसा फंक्शनैलिटी बना देंगे जो कि किसी एक इंडेक्स पे एक स्ट्रक्ट को वो चेंज कर देगा. ठीक है, मतलब एडिट कर पाएगा. फंक्शन that will also cause get data. Now what we will do is we will get this data based upon the index, because in front end you might need it. Only user only returns, and it will return three things. It will return an uint, it will return string, don't forget to add memory, and I will return another string. Cool. इतना बन गया. रिटर्न मार देते हैं. पहले चेक करेंगे if the index is less than the length of this array.
my data dot length. Invalid index. Cool. आपको पता है ना इमेज यूआरएल पे आप क्या डालोगे, सीआईडी डालोगे, जो भी आई हैव गिवन द असाइनमेंट फॉर दिस ओनली. My struct create a memory temporary variable data, and it is my data of index. This is the particular value. Okay, now return it. I'll be destructure type destructure it. जो भी बोलते हैं destructure बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे पता नहीं, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट. Image URL data dot text. एक दो तीन. Cool. All of the three will return. Error is gone. And now let's get the count of the data. Might need it. Function get data count. Also only user. Okay. Turns you into 56. Return length. Now let's return the entire array. Get all data. So for I've created that in voting one. I've created the function named for front end, right? Remember, it was a huge one. Public view. It will also be only owner, only user, not owner. Once it will return the entire array. My struct of memory and return my data. पूरा बेस्ड हो गया सिस्टम सेट. हम डिप्लॉय मारेंगे. कूल. एंड लेट्स गिव दिस पर्सन. पहले तो इसको इस पे ही इसका रोल एक्सेस नहीं होगा. द डिप्लॉय थिंग वोंट बी हैविंग द एक्सेस टू दिस क्या बोलते हैं हम, यूजर रोल. सो लेट्स प्रूव दैट. पहले हम कोई भी एक गेट फंक्शन कॉल करेंगे दैट इज विद दिस मॉडिफायर ओनली यूजर. मारते हैं गेट ऑल डेटा को. इट इज रिवर्टेड restricted to users only. So अगर इस पे user role होता तो he would have called it. Now let's add this because I am the admin only. I'm the super admin, so I can add myself this role. So I will just click on this add user. क्या दिक्कत है यार. 0x53 from data restricted to admins. Wow. इस पे ये admin ही नहीं है. So I have done something wrong in the logic. Right here, यहाँ पे मैंने जो कुछ चेंज किया था पक्का यही कुछ चेंज कर दिया होगा मैंने. Admin role. Give me a second. Role user role. User. Okay. Give me a second. Give me 10 minutes. Just not gonna share my screen and check the error.
कूल कूल कूल, हो गया। सो एडमिन रोल जो ओके, या गुड गुड गुड। So currently, what we are doing, what we will do is we will not use any sort of admin role. हम admin role पे क्या करेंगे is like एडमिन रोल हमारा यही होगा, सुपर जो क्या बोलते हैं इसको, डिफॉल्ट एडमिन रोल जो है ना, इसी सुपर यूजर को एज अ एडमिन हम मान लेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट गिविंग एक्सेस। तो मतलब समझ रहे हो कि अगर मेरे को इसको इस एडमिन जो है, ओनली देयर विल बी वन गाय एंड ही विल बी गिविंग एक्सेस टू अदर यूजर। तो मतलब एक और अपने को सेटअप सिस्टम बिठाना पड़ेगा, अगर करने पड़ेगा तो एक और वी विल मेक इट एंड स्टार्ट गिविंग एक्सेस। तो इन अदर वर्ड्स, जो मेरा ये वाला था ना यहाँ पे करेंटली डिफॉल्ट एडमिन रोल, मैंने बस इतना चेंज कर दिया एंड नाउ इट एवरीथिंग माइट वर्क। आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल आफ्टर सम टाइम। मैं समझ गया गलती कहाँ हो रही थी। ओके, आई copied this and now let's check a, if I can add this person as the user or not. तो पहले हम चेक करते हैं इस पे है कि नहीं रोल। ठीक है, इस यूजर, no, it's not the user. Shall I add this guy the user? Yes, I can add this person the user. Now let's check, is this person the user? Yes, he is the user. It means, I guess, I can call this function get all data. Get all data. Alright, I can call this and it is successfully being called. So I guess this is the contract. And now instead of this, I guess, add admin. ठीक है, इसका अपने को एक और मॉडिफायर बना देंगे। एडमिन की जगह हम इसका नाम रख देते हैं समथिंग एल्स। ठीक है, एडमिन जैसे समथिंग एल्स, जैसे कि मॉडरेटर, इसका नाम रख देते हैं मॉडरेटर। क्योंकि जो एडमिन है ही विल हैव दिस डिफॉल्ट एडमिन रोल एंड ही विल बी द सुपर यूजर मॉडरेटर। एंड इसका नाम भी कर देंगे मॉडरेटर। ठीक है, एंड अब शायद से सब कौन सब सिस्टम सेट बैठेगा। ओनली एडमिन, नाउ वी विल क्रिएट ओनली एडमिन तो है ही, इसकी जगह एड मॉडरेटर मार देंगे, ग्रांट रोल मॉडरेटर। एडमिन ये एड एडमिन हटा दो, जरूरत नहीं। हियर वी विल क्रिएट समथिंग नोन एज एड मॉडरेटर। ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली वी विल क्रिएट अ मॉडिफायर फॉर मॉडरेटर। समझ रहे हो जो बोल रहा हूँ? आई गेस इतना ही है। And we successfully created this blog application. We'll be sending you this code. Ticket works fine. Okay. Let me stop sharing the screen. Good. I presume my screen is not sharing right now. Okay. This is the contract, and now let's learn about the last thing, which is the staking one. Okay. I guess Tiasha, hello, आपको दिक्कत थी ना स्टेकिंग पे? हो गया? इसमें हेलो, हेलो, हाँ, आपको स्टेकिंग पे दिक्कत थी ना? हाँ। वो जो वॉल्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट था, पैसा डालते हैं जिसपे। ठीक है, बनाते हैं, कोई ना। वन नोट, ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प के लिए एक मार देते हैं, एक और ds1 में एक्सिस ब्लॉग आई विल क्रिएट फॉर जस्ट स्टेकिंग। Okay, staking contract, staker and display function gets the timestamp. Public view
ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प, फिर हम टाइम देखते हैं इसका कितना हुआ है। ओके, डिप्लॉय गेट टाइम स्टैम्प इतना कुछ आ रहा है 1688883। आई विल वेट फॉर 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। कुछ ज्यादा बढ़ गया, इतना नहीं बढ़ना था। बट ये ना सेकंड के फॉर्म में ऐसा जाता है, ठीक है। सेकंड नहीं, उनके माइनिंग टाइम के हिसाब से वो जाता है, मान के चलते हैं। हाँ, इथेरियम में के सेकंड्स के फॉर्म में जाता है ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प, कि वो जब भी एक ब्लॉक माइन हुआ उसी के हिसाब से ये टाइम स्टैम्प जाता है, ठीक है। हम इतना मान के चलते हैं। पूरे भाई, तो इसको सेकंड्स के फॉर्म पे हम मान सकते हैं गेस। ये बहुत ज्यादा जल्दी जा रहा है, सेकंड्स के फॉर्म में नहीं जाता। 3 4 5 6, हाँ क्या सेकंड के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। कूल। स्टॉप नहीं दिख रहा है, अभी वन नोट शेयर करती हैं। तो बैंक पॉलिसी है कि यू पुट डिपॉजिट 1 ether and I will give you 1 token for every second you have staked. बट अभी 1 सेकेंड ना थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको 10 मिनट्स मार देते हैं। 1 टोकन फॉर एवरी 10 मिनट्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मिस्टर तांजीरो ने 10 AM पर 1 ईथर स्टेक किया, then how much token will he or how much token should the bank give him at 10:30? और हाँ 10:30, बताओ तियाशा, बताओ इसका आंसर। 3. मतलब 3 टोकन देगा, राइट? एंड हाउ डिड यू कैलकुलेट इट? Okay, so it was given कि 1 token for every 10 minutes. तो हम मान के चलते हैं कि हमने टाइम को कैसे सेट किया, टाइम को हमने किया, हम ऐसा मान के चलते हैं ना 10:30 -10, राइट? ऐसे ही तो कैलकुलेट किया हमने, मतलब करंट टाइम माइनस डिपॉजिटेड टाइम, राइट? यही तो किया हमने। फिर 30 निकला और फिर हमने उसको रेट के हिसाब, रेट पे डिवाइड कर दिया। 10 3, 3 निकला तो 3 टोकन। कूल, इतना समझ गए ये मैथ्स फालतू का? ठीक है। अब ये तो टाइम तो ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प से ही हम रखेंगे। वो मैंने ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प वो मैंने ऐसे सेट किया है, बट ना उसका इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टाइम देयर इज अ डिफरेंट फॉर्मूला, राइट, दैट आई विल बी शेयरिंग इन अनदर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो मैं बहुत ही अच्छे से होगा, बट करेंटली लेट्स अज्यूम दैट वन एवरी सेकंड 1 ब्लॉक इज माइंड, ठीक है। तो अभी कितना दिखाया था, मतलब मान के चलते हैं अपना था, हमने डिपॉजिट किया था, जो कि अपना डिपॉजिटेड टाइम है, वो है 1825763, राइट? ये इतना मान के चलते हैं कि इसी टाइम पे हमने दिया था, डिपॉजिट किया था। सो आफ्टर 10 मिनट्स
इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कोई बता सकता है? कोई गेस करके बताओ अप्रोक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए? इफ आई अज्यूम दैट इन एवरी सेकंड वन ब्लॉक इज माइंड, बताओ ये, अच्छा बताओ कितना होना चाहिए, मतलब So प्लस की। 10 into, yes, हाँ हाँ that deposited time plus 10 into number of seconds in 1 minute. हाँ, तो आई गेस कितना होना चाहिए, 600, राइट? 600 ही होना चाहिए ना? Yes. हाँ, तो जितना भी आया, कितना आया, 182 7 5, क्या बोलते हो, 56 ए, कितना होता है, 7 3, Three भाई six मैथ भी नहीं आता, जितना भी होता है समथिंग 3 होता है क्या, 6 3 6. 6 हाँ इतना ही होता होगा, राइट? एंड अब हम क्या करेंगे कि अगर 30 मिनट्स हुआ तो इसका वर्थ कितना होना चाहिए, प्लस 1800, राइट? तो अपने को क्या चाहिए कि हम अभी तो 1800 निकाल दे रहे हैं, लेकिन अपने को क्या दिखेगा, अपने हम तो सिर्फ करंट टाइम दिखा सकते हैं, डिपॉजिटेड टाइम और करंट टाइम दिखा सकते हैं, तो आफ्टर 30 मिनट्स अपने को निकालना, यही निकालना है ना, तो मैं देखता हूँ कि मान के चलते 30 मिनट्स गुजर गए, राइट? तो उसका वैल्यू होगा 1827563, ये है करंट टाइम। करंट टाइम माइनस दिस, नॉट दिस वन, उसके ऊपर वाला दिस वन माइनस दिस, तो इसकी वैल्यू अगर लगभग लगभग 1800 आई, सो इट मीन्स कि हमने 30 मिनट्स तक डिपॉजिट किया। अगर मैंने 30 मिनट्स तक डिपॉजिट किया तो 3 होना चाहिए, राइट? 3 टोकन मिलने चाहिए। चलो अभी मान के चलते हैं, इससे एक दिक्कत आ जा रही है। इससे क्या दिक्कत आ रही है कि अगर तांजीरो ने पहले 10 मिनट तक फर्स्ट 10 मिनट्स ही डिपॉजिटेड 1 टोकन, देन और इसको ना 10 मिनट्स की जगह इसको 40 मिनट्स मान लेते हैं। फर्स्ट 40 मिनट्स ही डिपॉजिटेड 1 टोकन, देन सेकेंड 40 मिनट्स ही डिपॉजिटेड 2 टोकन, राइट? टोटल टोटल डिपॉजिटेड कितना हुआ, 3 टोकन। अगर हम डायरेक्टली, अगर हम इस चीज को यहाँ पे हैंडल नहीं करेंगे एंड डायरेक्टली वी मेक दिस एज द डिपॉजिटेड टाइम एंड वी डू नॉट डू समथिंग हियर, इधर अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो डिपॉजिटेड टाइम और यहाँ पे रिट्रीवल टाइम, टाइम कितना होगा, जितना भी होगा, मतलब 40 40 80 मिनट्स, ठीक है? 80 मिनट्स का हिसाब पता है कितना होगा, 3 टोकन के हिसाब से होगा और 3 ईथर के हिसाब से होगा। टोकन नहीं, ईथर लिखो रे, वो भी टोकन ही है देखा जाए तो। 3 ईथर के हिसाब से होगा, तो मतलब जब उसको रिवॉर्ड मिलेगा ना, रुको, जब तांजीरो को रिवॉर्ड मिलेगा, देन ही विल गेट 24 टोकन्स। Like it is like compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट तो अलग हो गया, यहाँ पे पता है इसको मतलब हम लोग को क्या करना, मैं बता रहा हूँ हिंदी में, अगर बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको हम कट कर सकते हैं। पहले अगर मैंने एक ईथर 1 मिनट के लिए रखा, सॉरी मतलब एक ईथर 40 मिनट के लिए रखा, फिर मैंने 2 ईथर और 40 मिनट के लिए रखा, तो अगर मैंने इस बीच के मैंने अगर उस सिस्टम को हैंडल नहीं किया ना, तो मेरे को मतलब 80 मिनट में 3 ईथर का मतलब मिल जाएगा, समझ रहे हो? बट की मिलना कितना चाहिए, वन, इस ईथर का रिवॉर्ड अलग से मिलना चाहिए और इस ईथर का रिवॉर्ड मेरे को अलग से मिलना चाहिए, समझ रहे हो? अगर इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो मतलब तब तुम्हें को समझ आएगा, मतलब इन अदर वर्ड्स, अगर हम करंट टाइम जो, सॉरी डिपॉजिटेड टाइम को अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हमको मिल जाएंगे 24 टोकन्स, मतलब तांजीरो को, बट उसको मिलने कितने चाहिए, 4 टोकन प्लस 12 टोकन, 4 टोकन फॉर 1 ईथर एंड 12 टोकन फॉर 2 ईथर, for 40 minutes, for 40 minutes.
सो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बीच में फॉर्मूला ना कॉम्प्लिकेट हो गया कि एवरी टाइम तांजीरो डिपॉजिट्स 1 ईथर ही गेट्स द रिवॉर्ड, समझ रहे हो, उसको पुराना रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो उसका जितना भी अभी तक का हुआ है उसको मिल जाएगा, और फिर जो करंट और जो डिपॉजिटेड टाइम है वो रीसेट हो जाएगा। तो उसको ना 1 ईथर जो पहले उसने डिपॉजिट किया था 1 ईथर, उससे छुटकारा मिल जाएगा और फिर वो 2 ईथर्स का डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाएगा। बस यही एक फंडा जो कि दिमाग लगाना था, इसके अलावा बाकी सिंपल है सब, वो करते हैं इसको। गिव मी 5 मिनट्स, ठीक है, मेरे को 5 मिनट में आना। हेलो, लेट्स कोड दिस कॉन्ट्रैक्ट, इसको बंद करें and just create it first. Let's create the owner address, public owner, ठीक है। अभी अभी मेरे को क्या चाहिए, आई नीड एन मेरे को क्या चाहिए था, हाँ इसमें एक टोकन तो डालेंगे ही ना, तो उस टोकन के लिए अपने को एक ERC20 टोकन चाहिए रहेगा, राइट। मान के चलते कि मैंने ERC20 टोकन बना ही दी है, ठीक है, मैं इस पे बाद में ट्रांसफर कर दूंगा पैसा, अभी अभी करते हैं इसको, पहले स्टिकर बनाते हैं, देन वी विल फोकस ऑन ERC21। सिंपल है, वो तो पढ़ा रखा है, ठीक है। एंड ओनर बना दिया IERC20, इसकी जगह तुम डायरेक्ट ERC20 करके भी ले सकते हो, मैं इंटरफेस से कर रहा हूँ। पब्लिक माई टोकन, बिकॉज द ओनली थिंग दैट आई नीड फ्रॉम दिस ERC20 इज द ट्रांसफर एंड बैलेंस ऑफ फंक्शंस, उसके अलावा मेरा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। पब्लिक माई टोकन, ठीक है। एंड नाउ अभी एक रिवॉर्ड रेट मार देते हैं 250 यूएंट, पब्लिक टोकन रिवॉर्ड रेट, एंड यूएंट पब्लिक टोकन रिवॉर्ड ड्यूरेशन, अब तक कितने समय तक इसने पैसा स्टेक किया है, ओके। अरे नहीं, हाँ मतलब ये तो तुम्हारा एक टोकन फॉर 1 मिनट, सॉरी एक टोकन फॉर 1 सेकंड था। अब एक डिपॉजिट स्ट्रक्ट बनाते हैं, here this struct will have an amount and it will have a timestamp, HTA. So now we will create a address to deposit mapping to deposit public deposits, ट्रैक रखेंगे, एक 3 इवेंट्स मारते हैं, डिपॉजिट ईथर, विथड्रॉ ईथर, क्लेम टोकन्स, ये तीनों चेंजेस होने के बाद अपने को चाहिए, ठीक है। इवेंट
डिपॉजिट ईथर एड्रेस, पहले ना डिपॉजिट ईथर का बनाते हैं, फिर उसके बाद बाकी तो देखेंगे। इंडेक्स डिपॉजिटर, डिपॉजिट किया और कितना किया। ठीक है, अभी मॉडिफायर एक नॉर्मल सा बना देता हूँ, ओनली ओनर, सो दैट मॉडिफायर नहीं बनाते, बाद में बनाएंगे, कोई ना। अभी कंस्ट्रक्टर, एंड यहाँ पे हम लोग अपना टोकन का एड्रेस डालेंगे, विच इज द माई ERC20, जो भी मैंने बनाया होगा। माई टोकन एड्रेस, ओनर to message dot sender and my token equal to IERC के ऊपर से दिया मैंने, and my token address, तो IERC 20 तो टोकन रिवॉर्ड रेट 1 रहेगा, टोकन रिवॉर्ड ड्यूरेशन भी 1 रहेगा। वन रिवॉर्ड ड्यूरेशन इज ऑल्सो 1। हो गया, फालतू के बॉयलर प्लेट, फालतू की चीजें अभी डिपॉजिट मारते हैं। चलो डिपॉजिट ईथर, एक्सटर्नल रखेंगे, पेएबल रखेंगे, इसमें ईथर जाएगा। आप चेक करते हैं, रिक्वायर मैसेज डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 0 पता होना चाहिए। मैसेज डॉट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी मार सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 मारते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मारना चाहिए था, ठीक है। नो ईथर फाउंड टू डिपॉजिट करीब फुल। तब तक तो सिंपल ही है, कुछ है डाउट्स इस पे? अभी इतना डाल दिया। नाउ व्हाट वी विल डू इज क्रिएट एन वैल्यू दैट विल अभी एक इंटीजर लेंगे जो कि अमाउंट रखेगा, वेरिएबल जिसमें हम लिखते हैं अमाउंट इज इक्वल टू मैसेज डॉट वैल्यू, सेम थिंग। तो करेंगे, बताता हूँ, रुको। अभी हम चेक करेंगे पहली बार दे रहा है कि नहीं दे रहा। इफ डिपॉजिट्स, ये है डिपॉजिट्स ऑफ मैसेज डॉट सेंडर का डॉट अमाउंट, क्या ये 0 है? इफ इट इज 0 तो ये पहली बार दे रहा है ना, तो टाइम स्टैम्प डिफाइन कर देते हैं, डिपॉजिट्स ऑफ मैसेज डॉट सेंडर डॉट टाइम स्टैम्प इक्वल टू ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प। ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अगर ये पहली बार डिपॉजिट नहीं कर रहा है, मतलब इसने पहले भी कभी डिपॉजिट किया हुआ है, तो क्या करेंगे, अब तक उसका जितना भी रिवॉर्ड कैलकुलेट हुआ है, इसको भेज देते हैं, वापस भेज देंगे। क्योंकि वर्ड मैं इसका एक फंक्शन बना दूंगा, तो वापस बोल देते हैं इफ रिवॉर्ड ग्रेटर देन 0, माई टोकन डॉट ट्रांसफर, ठीक है। क्लेम टोकन्स, क्लेम टोकन का इवेंट भी नहीं बनाया था मैंने।
टोकन्स, अपना हम जाएंगे कितना कितना टोकन हमने क्लेम किया, बस नेक्स्ट क्लेमेंट किया कितना रिटर्न। हाँ, हम टोकन तो उस समय का वापस कर देंगे और फिर बाकी टोटल से काउंटिंग होगा। और क्या, मैंने शायद से यहाँ पे गलती कर दी थी बोलते वक्त कि इधर जो 3 ईथर का टोटल नहीं, अब इधर से 3 ईथर से शुरू होगा, 3 ईथर से शुरू होगा तुम्हारा 40 मिनट के बाद काउंटिंग, ठीक है ना, वो 0 से शुरू हो जाता। बस बस इसीलिए हम ये वाला स्टेप कर रहे हैं, वरना नहीं करते हैं। दैट्स इट। ट्रांसफर रिवॉर्ड कर दिया, क्लेम टोकन सेंडर, एंड हम रिवॉर्ड भी भेज देंगे। इसको एमिट कर दो। क्लेम टोकन्स कूल। अभी कैलकुलेट करते हैं, फंक्शन बनाएंगे जो कि कैलकुलेट कर देगा। इतना इतना इतना, अब हमने इतना तो कर ही दिया, इसका एंड कहाँ पे हो रहा है करेंटली। नाउ लेट्स कीप ट्रैक ऑफ कितना हमने अमाउंट भेजा है। डिपॉजिट्स ऑफ मैसेज डॉट सेंडर डॉट अमाउंट प्लस इक्वल टू अमाउंट, कर देते हैं डिपॉजिट ईथर को, डिपॉजिट ईथर एंड मैसेज डॉट सेंडर कर देंगे, जो भेज रहा है कितना भेज रहा है। सेट, हाँ भाई हो गया, समझ गया मैं, ठीक है कैलकुलेट करते हैं। फंक्शन कैलकुलेट रिवॉर्ड, फिर ये होगा एड्रेस अकाउंट, इस अकाउंट पे कितना है, पब्लिक होएगा, व्यू रहेगा, रिटर्न होगा इवेंट, ठीक। अभी हम करेंगे, अभी हम एक इसका इंस्टेंस बनाते हैं, इंस्टेंस का नेम इसका एक वेरिएबल पे डालते हैं, उसका एड्रेस का जो भी तुम्हारा स्ट्रक्ट है, क्या डिपॉजिट स्टोरेज, डिपॉजिट स्टोरेज इसलिए क्योंकि हम इस पे चेंजेस करेंगे। चेंजेस करेंगे बोल रहा हूँ इसको हम इस पे कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, रुको 2 मिनट रुको मैं बताता हूँ। इसको मैं सेट मार देता हूँ, इसको मेमोरी करके चेंज करके बताऊंगा क्यों किया हमने। डिपॉजिट डॉट अमाउंट ग्रेटर देन 0 ज्यादा है तो यूएंट elapsed टाइम लिखते हैं, एक वेरिएबल तो ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प, ये जो अभी करंट है जो कि है करंट टाइम, माइनस डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट का जो टाइम स्टैम्प को क्या बोले थे हम लोगों ने, डिपॉजिटेड टाइम डॉट टाइम स्टैम्प वैल्यू लिया। अभी हम रिवॉर्ड कैलकुलेट करते, इक्वल टू डिपॉजिट डॉट अमाउंट, मल्टीप्लाई कर देंगे तो elapsed टाइम, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे elapsed रेट से, टोकन रिवॉर्ड रेट से जो भी है रेट, फिर इसको मार देंगे टोकन रिवॉर्ड ड्यूरेशन, एंड इसको डिवाइड कर देंगे ईथर्स से बाय ईथर के रेट पे, बस, वरना वे का सिस्टम हो जाएगा। हाँ, आपको क्या दिक्कत है सर? एंड रिटर्न रिवॉर्ड, ये हो गया, एल्स मारते रिटर्न 0, नहीं है तो खाली है ना। अभी इसमें मैंने ऐसा सिस्टम डाला है क्या कि हम डाल सकते हैं कि नहीं? नहीं, डिपॉजिट
क्लेम टोकन्स, हम इसमें से चेक कर सकते हैं, अभी क्लेम करेंगे। ना हम जब भी डायरेक्ट डिपॉजिट, बिना डिपॉजिट के अगर निकालना है तो डायरेक्ट क्लेम टोकन्स मार देंगे। क्लेम टोकन्स, इतने में कोई डाउट हो तो बताओ। डाउट तो होना चाहिए इसमें, इसमें बहुत ज्यादा डाउट आएगा, बट पे बहुत टाइम से कर रखा है तो मैंने, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। इज इक्वल टू, अब ये रिवॉर्ड कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ से, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। अरे यार, बढ़ा लेंगे मैसेज डॉट सिंडर, यही तो निकालेगा ना, कोई और थोड़ी निकालेगा। ठीक है, अब रिक्वायर मारते हैं, रिक्वायर दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो रिवॉर्ड है उससे ज्यादा होना चाहिए। रिवॉर्ड सेकंड ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि नो टोकन्स टू क्लेम, जो हम टोकन भेज रहे हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में होना भी तो चाहिए ना। डिपॉजिट्स ऑफ मैसेज, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बाद में लिख देंगे, वो ऑटोमेटिकली वैसे भी एरर आता है। डॉट टाइम स्टैम्प, अभी टाइम स्टैम्प रीसेट कर देते हैं, फिर व्हाट्स रॉन्ग, let's reset it. Okay, and my token dot transfer, ट्रांसफर पे डाल देंगे मैसेज डॉट सेंडर, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट से जितना भी रिवॉर्ड कैलकुलेट हुआ है, EWARD9 रिवॉर्ड को भेज दो इस वाले एड्रेस पे। नाउ एमिट क्लेम टोकन, क्लेम टोकन का बनाया मैंने, यस, एमिट क्लेम टोकन, and now I will write message dot send a reward. Okay. अभी अपने को अभी विथड्रॉ ईथर आई गेस बनाना चाहिए, ताकि हमने ईथर डाला तो है लेकिन हमने ये भी वादा किया है कि हम ये मतलब ईथर्स को हम रिटर्न भी करवा देंगे। तो लेट्स क्रिएट दैट फंक्शन विथड्रॉ ईथर, यूएंट अमाउंट, ओके, एक्सटर्नल डाल देते हैं। नाउ लेट्स चेक रिक्वायर amount should be greater than 0, ठीक है, amount must be always greater than 0, आधा दिया, इतना दिया भी है। ठीक है, नाउ लेट्स क्रिएट कि जो अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये तो हमने डाल दिया है, दिया भी है तूने उतना नहीं, अमाउंट इसको माइनस पे तो होगा भी नहीं, रहने दो, ये वाला रिक्वायर नहीं डालेंगे हम डालेंगे डायरेक्ट दिया दिया भी है तूने कि नहीं, तो रिक्वायर अमाउंट less than equal to deposits of message dot sender dot amount, अब सही है, ये तूने अभी अब हमने चेक कर दिया है, तो now what we will do is we will transfer the amount that we have asked to withdraw. Deposits of message dot sender dot amount minus equal to amount, ठीक है, पेबल, इसको पेबल पे कन्वर्ट करते हैं वरना सेंड नहीं हो पाएगा, मैसेज डॉट सेंडर डॉट ट्रांसफर अमाउंट, जितना भी दिया उतना भाई साहब ले लीजिए आप। एमिट करते एक फंक्शन, मतलब इवेंट्स, इवेंट विथड्रॉ ईथर,
यहाँ पे जाएगा एड्रेस ही जाना चाहिए, एड्रेस सेम चीज, सेम एड्रेस और अमाउंट कॉपी मारते हैं, पेस्ट कर देते हैं। कूल, नाउ लेट्स एमिट इट, सेम थिंग जो कि हमने ऊपर किया था। emit author, this is the sender and amount, तीन सेट। इतना होने के बाद अपने को क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे हम बाद में। पहले फर्स्ट वी विल ब्रिंग आवर ERC20, D6 में था हम लोगों ने बनाया था, D4 20 ERC20 था ये, हाँ। टोकन ठीक है, इसको बनाते हैं, इसको डिप्लॉय मारते हैं। Day3 C20 का नाम था माई टोकन, my token. Let's deploy this. Name is PR code. Symbol is PRI. Supply इतना 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 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जाएगा किसके, हाँ ये मेरे वाले अकाउंट पे जाएगा, ठीक है, गुड, कर दिया। माई टोकन, नाउ बाई टेक, ये तो टोकन एड्रेस है, what I have to do is copy this. Where is the other one, staking one, this is right, got out. Now I have to deploy this, deploy sticker, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम डालेंगे, इसको कॉपी कर देते हैं बिकॉज दिस इज द टोकन एड्रेस अपना, ठीक है। ट्रांजैक्ट चल गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू इज, मेरे ये वाले एड्रेस पे होंगे उतने सारे पैसे और उतने सारे टोकन, सो लेट मी चेक द बैलेंस ऑफ दिस। इतने सारे, आई वांट टू ट्रांसफर सम टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये बैंक है ना अपना, इस पे इनिशियली कुछ होना तो चाहिए टोकन, तभी जाके तो रिवॉर्ड देगा। तो अभी इस पे रिवॉर्ड के लिए मैं कुछ टोकन भेज देता हूँ, ठीक है। ट्रांसफर रिसिपेंट पे कौन सा है, ये वाला, ठीक है। रिसिपेंट ट्रांसफर, रिसिपेंट डाल दो एंड अमाउंट करना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल। अभी मारते इसका चेक करते हैं बैलेंस कितना है ये वाले का कॉन्ट्रैक्ट का। बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज यू कैन सी 10,000 है, तो इस पे ऑलरेडी सेट हो गया। एंड करेंटली हम दिस, इसको हम कर देंगे बंद। नाउ अब हम करेंगे डिपॉजिट ईथर, वी की जगह ईथर इसको करेंगे 1, ठीक है। नाउ डिपॉजिट ईथर मार देते हैं। जय श्री राम, क्या दिक्कत है, माइंड failed transaction 9 but executor failed, क्या, अच्छा इसलिए, हाँ क्योंकि 0, वाओ सर जी, ओके। नाउ व्हाट वी डू इज, अब मैंने डिपॉजिट तो कर दिया, अभी देखो हाँ मैंने 1 सेकंड डाला था ना, अभी देखो इसका रिवॉर्ड है ना, ये 1 हो गया। टोकन रिवॉर्ड बढ़ना चाहिए ना इसको, क्लेम रिवॉर्ड्स, कैलकुलेट टोकन रिवॉर्ड, एड्रेस अकाउंट है मेरा ये वाला, ये बढ़ना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। 30, मतलब मान के चलो कि 30 सेकंड, मतलब इतना टोकन मेरे को मिलेगा, 35, 36, 37, ठीक है। तो करेंटली मेरे पास कितने टोकन है, चेक करते हैं। बैलेंस ऑफ करेंटली मेरे पास है 99999000, ठीक है। और मैंने इतना डाला, मान के चलते कि कोई और एक अकाउंट है, ठीक है। अभी विथड्रॉ के टाइम पे विथड्रॉ ईथर क्लेम टोकन, अभी मैं अगर क्लेम टोकन पे क्लिक मारता हूँ एंड अब मैं इसको, ये देखो ये तो रीसेट हो गया। अभी मैं अपना चेक करता हूँ कितना है अपने पास, 63 टोकन अपने को रिटर्न में मिल गया।
समझ गए ये चलता कैसी है। अब कोड को तुम बाकी डिटेल में, चलो अभी अगर इतना समझ नहीं आएगा इसको 2-3 बार देख लेना है, प्लस कोड को डिटेल से समझना और खुद से कोड करना है, और इसको इसका एक फ्रंट एंड बनाना है, क्योंकि ये तुम्हारा एक बड़ा प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कूल, आई गेस इतना ही। एनीवन हु हैज एनी डाउट? हेलो किरण, हो गया आज का, इतना ही। तो डाउट है जल्दी बता दो, क्योंकि यही था, ये सबसे फाइनल कॉन्सेप्ट था, मुश्किल था बट इतना ही है, खत्म है सब। बताओ इन चैट। कोड भेज दो। किरण कॉल करते होते हैं। Hey, Priyansh. Hello. Yeah, I've covered and given the project